focus on this topic, hydrogen peroxide, and its formula is H2O2. This was discovered by a chemist, that was a French chemist, L.J. Thénard, and he basically named it as, it's also known as oxygenated water. But you focus on this thing, hydrogen peroxide. So we have the preparations. We are starting with the, we are not going detail of it, but I just want to explain you according to your syllabus. So let's focus on the lab method, which has been there in our course. So in our course, it's always said that hydrogen peroxide you have to prepare by peroxides. So there are two ways of preparing it. One is from sodium peroxide, another is from your barium peroxide. So let's focus on the sodium peroxide. So sodium peroxide, if you focus, the formula is Na2O2. So this Na2O2 reacts with your sulfuric acid. One thing you have to make it sure that you have to calculate the value of sodium peroxide, how much you are taking, 20 grams, 10 grams, that you have to see. And this entire process is being conducted in a 20% ice cold sulfuric acid. So this sulfuric acid which you are using, it should be 20% ice cold sulfuric acid you will use, and in a small amount you have to use, and you have to keep it in a container. Suppose in this you are using Na2O2 is also added, and sulfuric acid is also added, 20% of it ice cold you will add, and you have to stir it with the help of a glass rod. ठीक है, ग्लास रॉड से आप कंटिन्यूशन में से हिलाते रहेंगे, स्मॉल अमाउंट में डालेंगे. देन व्हाट इज़ द केस, सोडियम sulfate is formed and hydrogen peroxide is being formed. This is the case. Now what has happened, that the solution which has been there, you have to cool it. The solution, जो solution होगा उसमें दोनों चीज़ें होंगी. आज जब इसमें हिलाएंगे तो ये कंपाउंड बनेंगे सारे. Then this solution you have to cool it. To cool this container, जब आप इन दोनों को मिला देंगे और ये products आपके बन जाएंगे, you cool the container and you will see that crystals of this thing, sodium sulfate in form of water is being separated out. तो आप जो ठंडा करोगे तो ये जो सोडियम सल्फेट आपको ऐसा दिख रहा है, ये बेसिकली आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, और ये ऊपर क्रिस्टल्स आ जाएंगे. आप इनको फिल्टरेशन कर लीजिए, इन्हें रिमूव कर दीजिए, और सल्फ्यूर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यू विल गेट. जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच यू विल गेट, इट विल बी ऑफ 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यू विल गेट इट. ठीक है. सो दिस सोल्यूशन इज जनरली यूज़ फॉर द ब्लीचिंग पर्पज. जैसे हम लोग अपने ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं ना, पैर धोने के लिए और हाथ धोने के लिए, उसमें ये सोल्यूशन यूज़ करा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ये. अब दूसरी कंडीशन आ जाती है आपकी बाय मीन्स ऑफ बेरियम सल्फेट. दीज टू मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So you will use barium peroxide. So this thing you have to use. I'm using it with two methods. In this also you can choose two methods. Acids are changed. एक जगह तो आप dilute sulfuric acid यूज़ करते हैं और एक जगह आप लेते हैं phosphoric acid. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको यूज़ करते हैं. तो हम लोग दोनों को यूज़ करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. तो बेरियम पेरोक्साइड आपने लिया, ये हाइड्रेटेड होता है, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेते हैं. तो बेरियम सल्फेट आपको वाइट कलर का होता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड यू विल गेट एंड 8 वाटर मॉलिक्यूल विल बी 8 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये हटा देना. 8 वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट. तो जो आपका रिज़ल्ट ये सोल्यूशन है, ये जो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, ये 5% H2O2 होता है आपका जो सोल्यूशन होता है. ठीक है. अब कंडीशन अराइजेस, हमने हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड लिया, अरे हम ये ले लेते हैं एनहाइड्रस. क्वेश्चन आएगा एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड. ठीक है. अब एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड वी आर नॉट यूजिंग इट. Why we are not using anhydrous barium peroxide? The point is that the reaction is very slow. That's why we are not using it. If you use anhydrous peroxide, ये reaction बहुत slow हो जाएगा, and it sees after some time. Basically it sees what happened. I am just telling you. तो अगर आप खाली बेरियम ऑक्साइड देंगे, एक तो रिएक्शन स्लो चलेगा, रिएक्शन इज स्लो.
दूसरा क्या है, ये बेरियम थोड़ी देर तो काम करेगा, उसके बाद इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी और वो हो जाएगी बेरियम सल्फेट की, ठीक है। और ये रिएक्शन को बिल्कुल स्टॉप कर देगा। तुम्हें रिएक्शन कराना बेरियम सल्फेट का, तुम्हारा ऊपर ही बेरियम सल्फेट बन के एक हार्ड कोटिंग बना लेगा, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ये बेसिकली। अब प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म दैट स्टॉप्स द रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सो अब हमारा फॉस्फोरिक एसिड का है जो हम लेंगे। अब इसमें आपने उस केस में आप ले सकते हैं, आप एनहाइड्रस बेरियम ऑक्साइड ले सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड आपने चूज़ करा, बेरियम फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें ये चीज़ आपकी बनती है ना, ये भी अच्छा है वो है। इस मेथड में थोड़ा सा ध्यान देना है, ऑल द हैवी मेटल इम्प्योरिटीज़ आर थ्रोन आउट एज ए इनसॉल्युबल फॉस्फेट। अगर इसमें इनसॉल्युबल फॉस्फेट्स इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो सारी आपकी इन फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल फॉस्फेट के फॉर्म में वो रिमूव हो जाएगा। तो ये भी एक सेकेंड मेथड है, बाय द एक्शन ऑफ phosphoric acid. So this thing also you can use. Now we have other methods also in our book, but that method manufacturing methods are there. Please don't learn. We have these two methods only. एक तो आपका बेरियम पेरोक्साइड्स का ये दोनों कंडीशंस है, और एक आपका सोडियम पेरोक्साइड। अदर वॉट एवर थिंग्स आर देयर इन द कोर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, वॉट एवर इज द बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड और ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज़ नॉट देयर इन योर रिड्यूस सिलेबस। सो प्लीज़ डोंट लर्न दिस टूल्स एंड बोथ ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें दोनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रीजनिंग है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट देयर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ देयर। लेट्स टॉक अबाउट इट। बेसिकली देखो H2O2 जो है दोनों मीडियम्स में एक्ट करता है, एसिडिक मीडियम में भी एंड इट वर्क्स इन योर बेसिक मीडियम ऑल्सो। So we'll learn about both the mediums first. Now let's come to the acidic medium first. So when you talk about the acidic medium, acidic समझ रहे हैं ना, जब acidic medium होगा तो H ions होंगे, ठीक है। acidic mediums में when you work, so it in that particular case is form you the water, ठीक है। और जब आप इसको बेसिक मीडियम में देखोगे, बेसिक मीडियम में अगर आप H2O2 को देखोगे तो उस कंडीशन में इट विल गिव यू एन OH आयन। भाई बेसिक है, ये कौन सा मीडियम रहेगा, बेसिक मीडियम। अब इसी को ही हमें देख के चलना है कि हाउ दिस बीन देयर के, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट्स वर्क्स इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन द बेसिक मीडियम। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिएक्शंस आते हैं कि ये लेड सल्फाइड is oxidized to lead sulfate, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अब देखो आपके में स्टेप रिएक्शन है पर मैं डायरेक्ट लिखती हूँ कि लेड सल्फाइड आपको मालूम है ये H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये लेड सल्फेट फॉर्म करेगा जो कि वाइट कलर का होगा। ये लेड सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, इट्स ब्लैक इन कलर। देन इट विल गिव यू H2O2 is been formed. H2O2 water is been formed. You balance it up. ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये 4 क्यों लगा दी, इसका एक स्टेप बता देती हूँ। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करते हो, स्टेप में करते हो, तो ये वाटर देगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा आपको, ठीक है। अब फर्दर जो PbS है ये रिएक्ट करता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और PbSO4 इट विल फॉर्म। नाउ देयर आर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बैलेंसेटेड बाय 4। जो ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस होते हैं। पार्शियल मेथड जो करा था बैलेंसिंग का ये वही है। अब 4 यहाँ आया तो पुट 4 हो गई है, तो इसकी वजह से पूरी रिएक्शन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4H2O2 गिव्स यू 4 वाटर गिव्स यू 4 नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अब आपने क्या करा, ये PbS वाली इक्वेशन को भी यू पुट इट हियर। So when you put it here, what will the case? It is not there in the book. Please make sure. So
these things are cancelled, but we are not cancelling it. It's not maths that we are cancelling, but you should assume it's in on your product side, it's reactant side, it will be cancelled. तो ये हट जाएगा. बचा क्या? You have this part, that is your 4H2O2 plus PBS gives you PbSO4 plus 4 water. It doesn't matter कि I am writing water here, you cannot put it here, but both you now you see both the reactions are same, only the positions are changed. So this way is the long method, but you directly write down, you will get the marks. So this is there are plenty of reactions in your books, but only the whatever has been there in our course that we have to see. So second है, it oxidizes your potassium आयोडीन. ठीक है, तो आपने क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki. H2O2 इज दिस वे, सो इट गिव्स यू 2 KOH plus I2. If there are I2 is here, to 2 is here, so this way you can do. We have other examples also. Let's focus on this. Oxidizes ferrous sulfate to ferric sulfate. Now what does ferrous sulfate formula? FeSO4 plus H2O2. It gives you ferric sulfate. You know how to write down ferric sulfate, and it gives you water. But this particular reaction is not been considered like that. It needs more acidic medium, so you have to put a dilute acetic acid over here. Then only it will accomplish, and then you can put it in this manner. तो ये चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें एसिडिक मीडियम आपको चाहिए होगा. अभी आपने देखा था ना एसिडिक मीडियम्स में. तो दिस वे देयर इज़ वन मोर दिस रिएक्शन विच यू कैन फोकस. नाउ दीज ऑल आर कमिंग इन योर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. दीज रिएक्शंस आर देयर. नाउ वील फोकस ऑन द reducing properties. Let's focus on the reducing property first. So let's see, again they are being present in the, it works in the acidic as well as it's is a reducing agent both for the acidic and the basic medium. So if you talk about the acidic medium, let's see how it's work. So acidic may definitely it give you H ions, that you have to focus. That's why it is an acidic medium. If you talk about in the basic medium how it's work, it will give you an OH ion, but in this form, in reducing agent, this will in the previous case now in oxidizer we were seeing that it was giving us the OH, but in this case it will take the OH ions. How come? See, it will take OH ions and it will give you water plus oxygen plus twice of electrons. So this way this happens in the acidic medium, this reaction happened in the basic medium. Now we have to focus that what reactions are there in this part. There are plenty of reactions in your book, but there is a limited syllabus now, to that point only you have to focus. It is an important question, please learn it. Now let's focus on it. Reduces chlorine to hydrogen chloride. So let's focus on it. H2O2 reacts with Cl2, gives you HCl plus O2. Let's focus on the general reaction, then we'll look forward in this form in a reaction. Now Cl2 के साथ ही react करता है. First it's the point is that ना कि it's always reacts with chlorine को आप water में dissolve करते हैं. ये step reaction में सिखा रही हूँ आपको. तो ये आपको it gives you HCl plus O, nascent oxygen. ठीक है. Now this particular nascent oxygen, दिस रिएक्ट्स विथ योर हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पे ये दो चीज़ें हैं, तो कैसे क्या रिएक्ट करेगा. ठीक है. सो इट गिव्स यू वाटर प्लस O2 इज बीन देयर. नाउ अगेन द सिनेरियो इज दैट वी हैव फर्स्ट रिएक्शन, इट्स टू रिएक्शन, दिस इज देयर. इन दिस बोथ द नेसेंट ऑक्सीजन्स आर सिंगल, तो देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग. अब ये देखो अलग अलग पार्ट्स में, रिएक्टेंट पार्ट में प्रोडक्ट में ये कैंसिल हो जाएंगे, बट वी विल नॉट राइट डाउन. ये दोनों अलग अलग है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड्स में ये कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या हो गया, Cl2 प्लस H2O2 गिव्स यू HCl plus O2. This way you can write down. Now we have acidified potassium permanganate solution.
यू नो पोटेशियम पर मैग्नेट इज़ पिंक इन कलर, तो उसका कलर ये डीकलराइज कर देता है, मतलब पिंक कलर ये पर्पलिश कर देते, ज़्यादा डाल दोगे सॉल्ट पोटेशियम तो पर्पल दिखने, कम डालोगे तो पिंक कलर, तो उसका डीकलराइजेशन का मतलब होता है जब आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो दैट पिंक कलर डिसअपियर्स। ठीक है, तो नाउ हाउ इट्स हैपन, सो KMnO4 ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KMnO4 प्लस H2, अब देखो एसिडिक मीडियम है तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट डाउन सल्फ्यूरिक एसिड, this thing you have to write down, without that you cannot. So it gives you K2SO4 MnSO4 plus water plus O2. For balancing we can put it 2 3 5, 3 इधर आएगा 5 इधर आएगा, then this thing it's 2 is been there, it's been there, we put 2 over here, 8 water is there and 5 this thing is there। ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गई। अब बेसिकली क्या होता है इसमें जो आयंस के फॉर्म में देखो मैग्नेट आयन होता है ना, पर मैग्नेट आयन, तो ये जो होता है एसिटिक मीडियम में लिया आपने, देन इट्स रिएक्ट्स विद योर H2O2 5, ये आपको Mn+2 देगा जो कलरलेस होता है, और ये क्या है आपका पूरा पिंक कलर का होता है। इट गिव्स यू 8 वाटर प्लस 5 O2। ठीक है, तो ये है स्टेप में याद करने की ज़रूरत नहीं है, गिव दिस फॉर्म दिस रिएक्शन, दिस इफ़ द रिएक्शन विल बी आस्क्ड यू विल गिव दिस रिएक्शन। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। So these are the reactions that are there in our syllabus, rest of the reactions are not there, so we have to focus on it and learn it. Uses is there, earlier uses were there but now it is not there. We have the structure also, structure part is also there, structure of hydrogen peroxide is there in our course, so I am showing it from the book only. Now one thing you have to focus, it has two structures, one is in the gas phase and in other it has the solid phase. So when you focus on the gas phase, it's you can see that like the book is been opened, it is looking like that. So this thing is there, we have oxygen atom, this has been attached to the hydrogen, this is the bond length, that is 95, this one oxygen atom has been linked up with the oxygen atom, its bond length is 147.5 picometer, this is the bond angle has been there when it's been in the gaseous phase. This side you have to put it hydrogen atom here and bond angle you can put it here, so this way its bond angle is different, this side when it's between this phase is different. Now you just see the part of solid states, again the bond angles, bond lengths, everything is different. Diagrams are similar, a bit similar, but in gas and the solid phase it's different. Now the case arises why these things are happening, why they are giving you different types of bondings, because this hydrogen peroxide contains hydrogen bonding. This thing you have to keep it in mind. I'm showing you from the book, but I want to tell you that they are capable of showing you about, it's been reduced now, that's it। जैसे आपके यहाँ दिख रहा है आपको 111.5 आपका रेंज आ रहा है और यहाँ पे आपका 90.2 आ रहा है। इट्स बीन रिड्यूस, बोथ द गैसियस फेज इज़ डिफरेंट एंड इन सॉलिड स्टेट इज़ डिफरेंट। व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, दैट दिस साइड द बॉन्ड एंगल इज़ बीन रिड्यूस। तो इधर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर लिंक्ड अप बाय अ सिंगल पेयर ऑफ बॉन्ड्स। सो ये जो बेसिकली ये पूरा जो है आपका एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है, और गैसियस फेज़ में अगर आप देखेंगे तो आप बहुत इजीली देखेंगे कि गैसियस फेज़ में ऑक्सीजन बॉन्ड्स लेंथ देखिए कितनी दी रखी है, यहाँ कितनी दी रखी है। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेलिंग इज बीन देयर इन, बॉन्ड एंगल्स आर डिफरेंट, बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट, है ना। और ये ध्यान रखना अलग अलग इसीलिए होता है क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिंकेज की वजह से ये शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द सॉलिड फेज। तो दिस पार्ट यू हैव टू, अगर आता है तो ये डायग्राम्स यू हैव टू, बोथ द डायग्राम्स यू हैव टू राइट डाउन एंड यू हैव टू ड्रॉ एंड यू हैव टू राइट डाउन दैट व्हाट you are drawing. So this thing you have to write down gas phase, this side you have to write down your solid phase. It's important topics, don't ignore it. It is also important for your board examination. It has been asked.